حاضرین جمعہ، معزز سامعین، ہر قسم کی تعریف، مدح و ستائش، بڑائی اور بزرگی اللہ بزرگ اور برتر کو لائق اور زیبا ہو، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ محمد کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عمل کو باطل نہ کرو، خراب نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جس بات کی طرف اشارہ فرمایا وہ ہے کہ ہر عمل کے اندر اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے، اور ہم جو بھی عمل انجام دے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے، ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے کہ وہ عمل کہیں ہمارے ضائع و برباد تو نہیں ہو رہے ہیں۔ انسان اس دنیا کے اندر اگر اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے کام انجام دیتا ہے اور اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہی نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا فائدہ ایسے عمل کرنے کا؟ کوئی فائدہ نہیں نکل سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس کی وجہ سے عملوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی پرستش کرتا ہے، لیکن ساتھ میں جا کر کے پیر ولی بزرگ کے درگاہوں پر جا کر کے بھی ان سے منت و سماجت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے عمل کو کبھی نہیں قبول کر سکتا، حتیٰ کہ نبیوں کو بھی اللہ رب العالمین نے کہہ دیا۔ اللہ رب العالمین نے 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرما دیا، اگر یہ تمام کے تمام لوگ بھی اگر شرک کرتے تو اللہ ان کے عمل کو ضائع برباد کر دیتا۔ آخری نبی کو بھی چیلنج کر دیا اللہ رب العالمین نے، کہا اے نبی اگر آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے عمل کو اللہ رب العالمین ضائع کر دیتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ہم عمل کریں اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونا ضروری ہے۔ بدعات خرافات سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ایک انسان نیکی کے کام کے لیے اپنے من چاہی چیزوں کو دین کا حصہ بنا لے، اللہ رب العالمین اس عمل کو پسند نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کو وہ عمل مطلوب نہیں ہے، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان عمل تو کرتا ہے مگر اس کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہے، دکھاوا اور شہرت طلبی پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس عمل کو کبھی قبول نہیں کر سکتا ہے۔ ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کا مقصد شہرت طلبی ہوتی ہے، دکھاوا مقصد ہوتا ہے، تاکہ دنیا والے یہ کہیں کہ انسان جب یہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو ضرور یہ انسان راتوں کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز ادا کرتا ہوگا، یہ انسان صلاۃ الاشراق ادا کرتا ہوگا، راتوں کو اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کرتا ہوگا، اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہوگا، تاکہ لوگ اسے کیا ہے اچھے افعال سے گردانے۔ اسی کا نام ریاکاری ہے۔ ایک انسان کیا ہے قربانی اس لیے کرتا ہے، ایک انسان غریب و مسکینوں میں اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ دنیا والے اسے کہیں یہ امیر ہے، یہ انسان بڑا ہی کیا ہے سیٹھ ہے، یہ انسان دھنی ہے، اس کے پاس اللہ رب العالمین نے روپے پیسے کی بھرمار کر رکھا ہے، اس لیے وہ انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ شہرت طلبی، ریاکاری انسان کا مطمع نظر ہو تو اللہ رب العالمین اس عمل کو کبھی قبول نہیں کر سکتا ہے۔ ایک انسان کیا ہے، کوئی بھی نیک عمل ہو جو اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، اسے انسانوں کے لیے کرے، انسانوں کو دکھانے کے لیے کرے، اپنی مفاد پرستی کے لیے انسان کرتا ہے تو یقین جان لیجئے اللہ رب العالمین کے یہاں اس عمل کو کبھی قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔
सामीन किराम, अमलों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो मतलूब है वो मतलूब ये है कि उसके अंदर इखलास होना चाहिए। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बय्यना के अंदर बयान फरमाया, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, लोगों को सिर्फ इसी बात का हुक्म दिया गया है कि वो दीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खालिस कर दे। जो भी अमल नेकी के काम अंजाम देते हैं सारा का सारा ये होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी कर सको, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश कर सको। इसी मकसद से वो इंसान नेकी के काम अंजाम देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या चाहिए? इखलास। अल्लाह हमारे दिलों के अमल को देखता है कि इंसान के दिलों के अंदर है क्या चीज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों के ऊपर है। इंसान जो भी अमल करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर के समझाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अगर किसी इंसान ने इस मकसद से हिजरत किया था ताकि अल्लाह और उसके रसूल के मकसद को पूरा किया जा सके, तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ है। लेकिन अगर किसी की हिजरत इसलिए है ताकि वो दुनिया कमाए, किसी औरत से शादी करे, तो यकीन जान लीजिए कि जिसकी तरफ उसने हिजरत किया जिस नियत से, उसी की तरफ उसकी हिजरत हो सकती है। सामीन किराम, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुत तक़वा मिनकुम। एक इंसान अगर एक बकरा खरीद करके लेकर के आता है, एक जानवर खरीद करके लेकर के आता है, अगर उसका मकसद ये है कि दुनिया वालों को दिखाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये पसंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम्हारा ये अमल पसंद है। इंसान को उसकी नीयत पहुंचती है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ना तो गोश्त पहुंचता है, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन को चमड़ा मतलब है, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसका खून पहुंचता है। अगर पहुंचता है तो हमारा इखलास पहुंचता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इखलास को देखता है कि इंसान ने किस मकसद से यह अमल अंजाम दिया है, इसका बुनियादी मकसद क्या है, किस लिए इंसान अमल करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन यही देखना चाहता है। सामीन किराम, कुरान मजीद के अंदर और हदीस नबविया के अंदर आपको बात मिलेगी कि अल्लाह और उसके रसूल को क्या चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन को इखलास चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सामीन किराम, शैतान बड़ा नब्ज शनास है। शैतान बड़ा नब्ज शनास है। शैतान का मकसद यह होता है कि इंसान को सबसे पहले मस्जिद जाने से रोक दे। एक इंसान मस्जिद न जाए उसके लिए लाख हीले बहाने करता है। बारिश हो रही है, अरे भाई मामूली बारिश हो रही है, उसको मस्जिद चले आना चाहिए, लेकिन उसके दिल के अंदर वसवसा डालता है कि नहीं मस्जिद जाकर के तुम्हें क्या मिलेगा। इंसान के दिल के अंदर ये वसवसा डालता है, अरे भाई गांव का अक्सर आदमी, गांव के अक्सर लोग नमाजी नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। अरे इंसान, तुम गरम गरम बिस्तरों को छोड़ करके कहां जा रहे हो? ठंडी का मौसम है, तुम अपनी बीवी को छोड़ करके कहां जा रहे हो? सारे के गांव के अक्सर लोग नमाजी नहीं है, तुम्हें नमाज से क्या वास्ता है? तुम्हें क्या मतलब है? भाई तुम भी नमाज न पढ़ने जाओ, गांव के अक्सर लोग तो नमाज नहीं पढ़ते हैं। ये शैतान वसवसा पहले इंसान के दिल में डालता है। अरे भाई दीगर लोग क्या है, मर्ज के नाम पर, बीमारी के नाम पर अक्सर गांव के फर्द रोजा नहीं रखते हैं, तुम क्यों रोजा रखते हो? अरे इंसान जरा बतलाओ, गांव के अक्सर फर्द लोग मोबाइलों के अंदर गाने सुनते हैं, वो गाने सी आवाज उनके मीठी लगती है, तुम क्यों मौजिम की सदा पर लब्बैक कहते हो? तुम्हें कुरान मजीद की तिलावत क्यों पसंद है? ऐ मेरे भाई, तुम कुरान क्यों पढ़ते हो? कुरान महे नजर नहीं तुम्हारा होना चाहिए। अरे भाई कुरान को छोड़ दो, तुम गाने सुनो। ये होती है शैतान की पहली क्या होती है, कोशिश होती है। लेकिन शैतान देखता है मैंने बड़ी बहकाया, बहुत फुसलाया, मैंने कहा भाई तुम क्यों मस्जिद जाते हो, लेकिन वो मस्जिद चला गया। मैंने कहा कुरान मजीद की तिलावत क्यों करते हो, लेकिन फिर भी वो क्या है, कुरान मजीद सुबह निकाल लेता है और कुरान मजीद की तिलावत करता है। जुमा का दिन आता है तो सूरह काफ की तिलावत जरूर करके आता है। ये क्या है, हाँ वो जरूर तिलावत करके आता है। एक इंसान रोजे से मैंने रोका, मगर फिर वो इंसान रोजा रखता है। मैंने उसे हर अमल से जो भी नेकी का अमल हो सकता था मैंने रोकने की कोशिश किया, लेकिन वो रुका नहीं, वो बाज नहीं आया। तो शैतान अगला हरबा चलता है। शैतान क्या है, अगला हरबा चलता है। शैतान चाहता है कि क्या है, उसके अमलों के अंदर इखलास को खत्म कर दे, रियाकारी के बीच वो बो देता है। सामीन किराम,
ये रियाकारी जना, ये उन लोगों की बीमारी है, ये उन लोगों की मर्ज है जो लोग दावा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुतीअ फरमा बरदार बंदे हैं, जो लोग दावा करते हैं हम नमाज पढ़ेंगे, जो दावा करते हैं कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, जो दावा करते हैं हम मुतीअ फरमा बरदार बंदा बन करके अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहेंगे, ये उनकी बीमारी नहीं है जिनका नमाज से लेना देना नहीं है, जिनका कुरान मजीद से लेना देना नहीं है, जिनका मस्जिद और मदरसा से लेना देना नहीं है। कोई इंसान मरे या जिए उसका लेना देना नहीं है, किसी के दर्द और तकलीफ से लेना देना नहीं है। ये उनकी बीमारी नहीं है, ये उनकी बीमारी है, ये उनकी मुसीबत है, ये उन लोगों की मुसीबत है जो लोग दावे करते हैं हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुतीअ फरमा बरदार बंदा रहेंगे, जो लोग दावा करते हैं हम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, जो दावा करते हैं हम मस्जिदों में 5 वक्त की हाजिरी देंगे, ये उन लोगों की बीमारी है, ये उन लोगों का मर्ज है। सामईन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका के अंदर बयान फरमाया, महमूद बिन लबीद की हदीस है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महमूद बिन लबीद की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्ना अखवफ मा अखाफु अलैकुम शिरकुल असगर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सबसे ज्यादा मैं जिस चीज से डरता हूं वो चीज है शिर्क असगर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, क़यामत का दिन होगा, लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में आएंगे अपने अमाल का बदला लेने के लिए। लोग दौड़े दौड़े आएंगे, कहेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने दुनिया के अंदर नेक अमल किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने तेरे खुशनूदी के लिए अमल अंजाम दिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं तुझसे बदला चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, इंसान तू लौट जा, तू जिसके दिखावे के लिए अमल करता था, तू जिसके दिखावे के लिए अमल करता था, तू अगर किसी को दिखावे के लिए नमाज अदा करता था, अगर तू रोजा किसी दिखावे के लिए करता था, अगर तू किसी कोई अमल कि दुनिया वालों को दिखावे के लिए करता था, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा जा उसी से बदला ले ले, मेरे पास तेरा कोई बदला नहीं है, मेरे पास कुछ भी अज्र तेरे लिए नहीं है। ये क्या है? ये रियाकारी बड़ी भयानक चीज है, बहुत ही क्या है? ये भयानक चीज है। हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा है कि दज्जाल से पनाह मांगो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज पढ़ो, तो क्या है? दज्जाल के फितने से पनाह मांगा करो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसे उम्मीद थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे तलकीन किया करते थे कि नमाज पढ़ो तो फितने दज्जाल से पनाह मांगा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरे सहाबे किराम बैठ करके दज्जाल के फितने के बारे में गुफ्तगू करते हैं। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमें कहां फुर्सत है कि क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन कुरान और हदीस पर कभी चर्चा कर लिया करें। हमारे पास टाइम नहीं है, दुनियादारी के बारे में फिक्र है, हमें खेत के बारे में फिक्र है, खेत बाड़ी के बारे में फिक्र है, प्रॉपर्टी कैसे बनानी फिक्र है, दुनिया के बारे में फिक्र है। अगर फिक्र नहीं है तो दीन के बारे में फिक्र नहीं है। सहाबे किराम को फिक्र थी कि कैसे दज्जाल के फितने से बचा जाए। वो लोग आपस में बैठ करके बहस कर रहे थे कैसे फितने दज्जाल से बचना है। चुनांचे यही गुफ्तगू कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मेरे सहाबे किराम दज्जाल के फितने से बचने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं, वो बैठ करके गुफ्तगू कर रहे हैं कैसे दज्जाल के फितने से बचा जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबे किराम, क्या मैं आप लोगों को दज्जाल से बड़ा फितना न बता दूं? अब आप सोच रहे होंगे ये दज्जाल से बड़ा फितना क्या है, ये दज्जाल से बड़ा फितना क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आए मेरे सहाबे किराम, दज्जाल से बड़ा फितना ये है, दज्जाल से बड़ा फितना यह है कि एक इंसान रियाकारी करे अपने अमलों के अंदर, इसलिए अमल अंजाम देता ताकि दुनिया वाले खुश हो जाएं। एक इंसान नमाज पढ़ने के लिए आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर के समझाया, एक इंसान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर तशरीफ लाता है, देखता है कि कोई इंसान बगल में नहीं है तो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ करके वो चलता बनता है, लेकिन जैसे देखता है मेरे बगल में मेरा एक भाई नमाज अदा कर रहा है, बड़ी खुशो खुजू के साथ बड़े अच्छे अंदाज में वो इंसान नमाज अदा करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यही तो रियाकारी है, यही रियाकारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर के समझाया यही रियाकारी है। इंसान दूसरों को दिखाने के लिए अमल अंजाम देता है। सामने किराम, इस हदीस पाक पर कभी आपने गौर किया कि दज्जाल से बड़ा फितना कैसे हो सकता है? ये रियाकारी।
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دجال کا فتنہ یہ قیامت کے آخر میں ان لوگوں کے اوپر آئے گا جو قیامت کے قریب میں روگے، دجال انہی کے پاس آئے گا، انہی کے لیے فتنہ ہوگا۔ لیکن ریاکاری یہ ہر دور کے لیے فتنہ ہے، جب سے یہ کیا ہے دنیا قائم ہوئی ہے یہ تا قیامت کی فتنہ برقرار رہے گا۔ ریاکاری ہر دور میں تھی، ہر دور میں رہے گی۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے عمومی طور پر دیکھا جائے تو یہ ریاکاری کا فتنہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ دجال سے بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من سمع سمع اللہ به ومن یرائی یرائی اللہ بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو انسان دکھائے ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے قیامت کے دن آئے گا اللہ رب العالمین بڑے محفل میں مجمع میں اللہ رب العالمین کہہ دے گا یہ بندہ ہے جس نے ریاکاری کے لیے عمل کیا تھا، جو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، اے لوگ جان لو یہی وہ بندہ ہے جو دکھاوے کے لیے عمل کرتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری نہیں چلے گی، یہ کیا ہے؟ دکھاوا نہیں چلے گا۔ آج ہمارا مسئلہ الٹا ہو گیا ہے۔ پہلے ایک مثال بیان کی جاتی تھی نیکی کر دریا میں ڈال، ایک مثال بیان کی جاتی تھی، یعنی نیکی کر کے بھول جاؤ، یہ محاورہ ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے بھلا دو۔ آج معاملہ الٹا ہو گیا ہے، نیکی کر سوشل میڈیا پر ڈال۔ یہ کیا ہے؟ نیکی کرنا ہے، دوسروں کو دکھانا ہے۔ ایک انسان کسی کو اگر ایک چادر دے رہا ہے اور ایک کیلا دے رہا ہے تو 10 لوگ مل کر کے فوٹو کھچاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں۔ بتائیے اس کی عزت کا جنازہ آپ نے نکال دیا، وہ شرمندگی کے مارے اسے ضرورت بھی ہوگی تو انسان آپ سے مانگنے نہیں آ سکتا ہے، وہ انسان کیسے مطالبہ کر سکتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اس کی عزت بعد میں نیلام ہوگی، آپ نے پہلے نیلام کر دیا ہے۔ سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا یہ منافقوں کا عمل ہے۔ یہ کس کا عمل ہے؟ منافق، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے، یہ ان کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق لوگ دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ منافق لوگ یہ ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں حالانکہ خود دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ منافق لوگ جب نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں ان کا مقصد نماز ادا کرنا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وہ چاہتے کہ نماز نہ پڑھے لیکن دنیا والوں کو دکھانا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ لوگ نماز کے اندر سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانا مقصد ہوتا ہے، ولا یذکرون الا قلیلا، وہ نمازوں کے اندر وہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے وہ منگا اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنا، وہ نمازوں کے اندر بڑا معمولی ذکر و اذکار کرتے ہیں، وہ بہت کم اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ ریاکاری شہرت طلبی ان کا مقصد ہوتا ہے تاکہ کیا ہے اللہ رب العالمین کے غضب و غضب سے بچ سکے، تاکہ دنیا والوں سے نگاہ میں یہ ظاہر ہو سکے یہ نیک لوگ ہیں، یہ امیر کبیر لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ کیا ہے بہت نیکوکار لوگ ہیں۔ اس دنیا والوں کو دکھانا مقصد ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بڑی بہترین بڑی عمدہ مثال اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ جو لوگ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے مومنو تم اپنے عملوں کو ضائع برباد نہ کرو، تم کیا ہے احسان جتلا کر کے، تم تکلیف اور ایذا پہنچا کر کے تم اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ کیا ہوتا ہے کسی کو جب ہم دیتے ہیں، کبھی دے دیے انسان مجبوری کی حالت میں تھا، پریشانی کی حالت میں تھا، تو جب جھگڑا ہوتا ہے سارے کا سارا نکل آتا ہے، ہم نے تمہیں فلاں موقع پر دیا تھا، ہم نے تمہیں فلاں موقع پر دیا تھا، آپ نے چھپا کر کے مخفی انداز میں سب کچھ دیا تھا لیکن آپ نے اعلان کر دیا، آپ نے دنیا والوں کو دکھا دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اس کی وجہ سے تمہارے عمل ضائع برباد ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین تمہارے عملوں کو ضائع برباد کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد مثال دیا کہ جیسے ایک انسان کیا ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے، ایک انسان دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کے عمل کو ضائع برباد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک مثال دیا
हम खेती करते हैं ना, हम अच्छे से खेती करना जानते हैं। एक इंसान अगर चिकने पत्थर पर खेती करे, मामूली सी मिट्टी लगा ले उसके ऊपर और मामूली मिट्टी रख करके उसके ऊपर बीज उगाए, हल्की सी फुहार होगी तो सारी की सारी मिट्टी बह जाएगी, कुछ भी नजर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया यही मिसाल उन लोगों की है जो लोग सदको खैरात करते हैं और सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, वो रियाकारी के लिए करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि एक इंसान जैसे चिकने पत्थर के ऊपर खेती करता है, उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है और फिर उसके ऊपर बीज उगाता है और फिर हल्की सी बारिश होती है, फुहार होती है और फिर सारी की सारी मिट्टी बह जाती है, ऐसे तुम्हारे अमलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बहा देगा। ऐसे हमारी अमलों की हालत होगी कि हम क्या करें, रियाकारी करेंगे तो हमारे अमलों को ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्बाद करेगा, हमारे अमलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे जाय करता है। सामीन किराम, ये क्या है, ये बड़ी मुसीबत है उन लोगों के लिए जो लोग रियाकारी करते हैं, जो लोग मोमिन है अपने आप को मोमिन गर्दानते हैं लेकिन फिर भी वो अमल करते हैं क्या है, रियाकारों की तरह से अमल करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस अमल को कभी कबूल नहीं कर सकता है। मैं आपको एक हदीस सुनाऊंगा, रोकते खड़े हो जाएंगे आपके। ये हदीस सुनने के लिए जिगर चाहिए, सुनने के लिए कलेजा चाहिए। इस हदीस को सुनने के लिए सुनाने वाले ने जब सुनाया था, मारे खौफ और दहशत को, दहशत के मारे वो बेहोश हो गए। रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, सही मुस्लिम की रिवायत है। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने शागिर्दों को हदीस सुनाते थे तो उनके दिल थर्रा जाते थे, घबरा जाया करते थे। एक मर्तबा एक साहबी, एक इंसान आए, एक आदमी आया है जब वो रज़ियल्लाहु ताला से फरमाया, अरे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं वो हदीस सुनना चाहता हूँ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने सुन रखा है, जो कयामत के बारे में आपने वो हदीस सुन रखा है, जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन इंसान आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अमलों को ज़ाय बर्बाद कर देगा, मैं वो हदीस सुनना चाहता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाया, मैं वो हदीस सुनाना चाहता हूँ, सुनो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे हदीस सुनाने लगे, वो उनके ऊपर बेहोशी तारी हो गई, वो घबराने लगे, थर्रा गए और जब बेहोशी तारी हो गई, जब उनको होश आया, दोबारा उन्होंने कोशिश की, अल्लाह इस हदीस को मैं बयान करता हूँ, दोबारा उनके ऊपर बेहोशी तारी हो गई, 2 मर्तबा बेहोश हो गए, तीसरी मर्तबा बेहोशी तारी हो गई। जब होश आया तब उन्होंने वो हदीस सुनाई। अब आप हदीस की अहमियत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हदीस कितनी अहम होगी, रोकते खड़े हो जाएंगे। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला हदीस बयान फरमाई कि क़यामत के दिन होगा, 3 लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में लाया जाएगा, 3 लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला सुनाएगा, उसमें से एक इंसान लाया जाएगा जो शहीद होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में पेश किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन शहीद के ऊपर अपने एहसान गिराएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, ऐ शहीद जरा बतला, जो मैंने तुझे तमाना बनाया था, मैंने तुझे हेल्दी बनाया था, मैंने तुझे लहीम शहीम बनाया था, मैंने तुझे ताकत दी थी, ऐ इंसान जरा बतला इस ताकत का तुमने इस्तेमाल कहां किया। वो इंसान कहेगा, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने इस ताकत को तेरे कलमे को बुलंद करने के लिए लगाए, मैंने तेरे दीन को बुलंद करने के लिए, दुनिया वालों को दीन पहुंचाने के लिए, तेरे कलमे को बुलंद करने के लिए, तेरे दीन को क्या है, दुनिया वालों तक पहुंचाने के लिए, जो लोग तेरे दीन के रास्ते में आड़े आए मैंने उनको खत्म कर दिया। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, यहाँ तक कि लड़ते लड़ते तेरे रास्ते में मैंने शहादत अपना ली। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, इंसान तू झूठ बोल रहा है, तो क्या है, तू झूठ बोल रहा है, तूने ये दुनिया के अंदर इसलिए किया था ताकि दुनिया वाले तुझे शहीद कहे, दुनिया वाले तुझे जरी कहे, दुनिया वाले तुझे बहादुर कहे, दुनिया में तुझे बहादुर कह दिया गया, दुनिया में तुझे शहीद कह दिया गया, आखिरत के अंदर तेरा कोई हिस्सा नहीं है। अरे फरिश्तों, इसे उठाओ, मुंह के बल घसीट करके इसे जहन्नम के अंदर ले जाओ। फरिश्ते उसे मुंह के बल घसीट करके जहन्नम ले जाएंगे। जरा सोचो, दर्दनाक ये मंजर होगा, ये दर्दनाक मंजर होगा। इसी तरीके से दूसरा इंसान लाया जाएगा, एक हाफिज़े कुरान, एक आलिम दीन को लाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हाफिज़े कुरान से पूछेगा,
आलिम दीन से पूछेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा जो अपने एहसान किए थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उसको इल्म की दौलत दी थी, जो कुरान मजीद को उसके सीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन एहसान को जतलाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान से कहेगा, मैंने जो तुझे कुरान मजीद का इल्म दिया था उस इल्म को क्या किया, मैंने तुझे कुरान और हदीस का इल्म दिया था, तूने उस इल्म का क्या किया। वो इंसान कहेगा, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं फला मस्जिद में इमामत कराता था, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं फला मस्जिद के अंदर इमामत कराता था, मैं फला मदरसे में पढ़ाता था, मैं अच्छी अच्छी तकरीरें करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, ये तूने सिर्फ अपने मफाद के लिए किया था, तेरा मकसद, मेरा मकसद नजर ये था ताकि दुनिया वाले तुझे कारी कहे, दुनिया वाले तुझे आलिम कहे, दुनिया वाले तुझे अच्छा खतीब कहे। सो दुनिया के अंदर कह दिया गया, आखिरत के अंदर तेरा कोई हिस्सा नहीं है। आए फरिश्तों, इसे उठाओ, इसे मुंह के बल घसीट करके इसे जहन्नम ले जाओ। कितना दर्दनाक मंजर होगा ये। क्या है, इंसान को घसीट करके, उस आलिम दीन को, उस हाफिज कुरान को फरिश्ते घसीट करके जहन्नम ले जाएंगे। तीसरा इंसान लाया जाएगा, एक मालदार शख्स को लाया जाएगा जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मालदारी से नवाजा था, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रुपए पैसे नवाजे थे, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्रॉपर्टी नवाजी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने एहसान को जतलाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, ऐ इंसान, मैंने तुझे रुपए पैसे से नवाजा था, ऐ इंसान जरा बतला जो मैंने तुझे रुपए पैसे दिए थे, ऐ इंसान जरा बतला जो मैंने तुझे प्रॉपर्टी दी थी, उस जायदाद का तुमने इस्तेमाल कहाँ किया। वो इंसान कहेगा, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने गरीबों में तकसीम कर दिया, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने यतीमों बेवाओं को मैंने तकसीम कर दिया, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, कभी मस्जिद बन रही थी, मैंने मस्जिद के अंदर खर्च कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, ऐ इंसान, तू झूठ बोल रहा है, तूने इसलिए खर्च किया ताकि दुनिया वाले तुझे सेठ कहे, दुनिया वाले तुझे मालदार कहे। सो दुनिया के अंदर कह दिया गया, ऐ फरिश्तों, इसे उठाओ, मुंह के बल घसीट करके इसे जहन्नम ले जाओ। फरिश्ते उसे उठाएंगे और उसे जहन्नम के अंदर लेकर के चले जाएंगे। सामीन किराम, सवाल ये बनता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीनों लोगों से जो कहा था उन्होंने सब कुछ किया। कभी आपने गौर किया इस हदीस पर कि आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन तीन लोगों को जहन्नम क्यों पहुंचाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम का ईंधन क्यों बना दिया? अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकसद यही था, शहीद को जो मकाम मर्तबा है, अल्लाह और उसके रसूल ने जो शहीद का मर्तबा गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो इंसान शहीद हो जाए तुम उसे मुर्दा तसव्वुर न करो, तुमसे ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शहीद का मर्तबा बयान फरमाया है। एक इंसान जो आलिम दीन है उसके बारे में, एक जो कुरान हाफिज कुरान है उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, ऐ हाफिज कुरान, इकरा, तू पढ़ता जा और वर्तकी और तू चढ़ता जा, तू जहां आखिरी कुरान की आयत होगी तेरी वही मंजिल होगी। आखिर उसने तो वही अंजाम दिया जो अल्लाह और उसके रसूल ने कहा था, उसने वही अंजाम दिया जो अल्लाह और उसके रसूल ने कहा था। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हसदा इल्ला फी सनतैनी, रजुल आताहु अल्लाहु मालन फहुवा युनफिकु आना अल-लैल व आना अन-नहार, व रजुल आताहु अल्लाहु हिकमता फहुवा यकूमु बिही आना अल-लैल व आना अन-नहार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि एक मालदार को नमूना बनने के लिए कहा गया है कि मालदार को देखो, जो मालदार क्या है, दिनों रात, वो दिनों रात अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में सदको खैरात करता है। तुम उसको देख करके इबरत हासिल करो, तुम उससे नमूना हासिल करो, तुम भी सदको खैरात करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से एक हाफिज कुरान की मिसाल दिया है, ये मकाम और मर्तबा है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया कि एक इंसान अगर क्या है, सदको खैरात करता है, उसका मकाम और मर्तबा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन 700 गुना तक बढ़ा करके देता है। लेकिन समझ में वाली बात यह है कि आखिर तीन लोगों को जहन्नम क्यों किया गया? एक ही तो गलती थी, एक ही तो खता थी। उन लोगों के दरमियान क्या आ गई थी? रियाकारी आ गई थी, उनके अंदर दिखावा, शोहरत तलबी आ गई थी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन तीन लोगों को जहन्नम रसीद कर दिया। सामीन किराम, हमारे असलाफ बहुत ज्यादा इससे बचते थे, हमारे असलाफ बहुत ज्यादा इज्तनाब करते थे, इससे बचते थे कि इंसान रियाकारी करे, अपने अमलों को छुपा करके करते थे, वो दिखावा नहीं करते थे। चुनांचे हुसैन बिन अली, जिन्हें ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, अली बिन हुसैन जिन्हें ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, उनके बारे में आता है कि जब उनका इंतकाल हुआ तब लोगों ने जाना कि वो बड़े फैयाज थे, बड़े सखी थे। अपनी जिंदगी के अंदर ज़ैनुल आबिदीन ने
40 घरों को अपना राशन खुद पहुंचाया करते थे। 40 घरों को रोजाना वो दिया करते थे, गरीबों मिस्कीनों में बांटा करते थे। मगर जिंदगी में कभी पता ये नहीं चला कि आखिर ये राशन कौन पहुंचा रहा है, ये कौन माल दे रहा है, ये कौन रुपए रोजाना पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जिस दिन ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल होता है, उस दिन से राशन पानी बंद हो गया। लोगों ने जान लिया ये ज़ैनुल आबिदीन थे, ये हमारे असलाफ इस तरीके से छुपा करके सदको खैरात किया करते थे। इसी तरीके से आता है सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह अलैह, एक ताबई हैं, और इसी तरीके से एक और दो लोग बैठ करके गुफ्तगू कर रहे थे। वो लोग बैठ करके गुफ्तगू कर रहे थे। कहा कि आज जरा ये बतलाओ, सईद बिन जुबैर ने पूछा, आज टूटे हुए सितारे के रात में किसने देखा? चुनांचे एक ने कहा कि रात को मैंने आज टूटे हुए सितारे को देखा था। उसके बाद उन्होंने अपनी बात की क्या है तशरीह किया। कहा इस मजमे को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं रात से तहज्जुद पढ़ रहा था, मैं रात को अंदर इसलिए जाग रहा था क्योंकि मुझे एक बिच्छू ने डंक मार दिया था। उसी बिच्छू के डंक मारने की वजह से, तकलीफ की वजह से मैं क्या है रात के अंदर जाग रहा था। ये हमारे असलाफ थे, ये हमारे असलाफ थे जो छुपा करके मख्फी अंदाज में सदको खैरात किया करते थे। सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन 7 तरह के लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श इलाही का साया देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि एक इंसान क़यामत के दिन आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अर्श इलाही का साया देगा। उसमें से एक बंदा ये होगा, एक इंसान ये होगा जिसने इतना मख्फी अंदाज में छुपा करके सदको खैरात दिया होगा, यहाँ तक कि उसके बाएं हाथ को ये भी पता नहीं चलेगा कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया था। ये क्या है? इतना छुपा करके, इतना मख्फी अंदाज में वो इंसान सदको खैरात करता था, वो इंसान देता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, उस इंसान को क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श इलाही का अल्लाह रब्बुल आलमीन साया देगा। सामीन किराम, लेकिन इसका मकसद ये भी नहीं है कि आप जाहिरी और ऐलान से सदको खैरात नहीं कर सकते हैं। अगर इंसान की नीयत सही हो, इंसान की नीयत दुरुस्त हो, तो इंसान जाहिरी तौर पर दिखा करके भी सदको खैरात कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, जो लोग मख्फी अंदाज में और जाहिरी अंदाज में दिन और रात के अंदर वो लोग क्या करते हैं, सदको खैरात करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को यह भी मकसूद है कि एक इंसान अगर रात के अंदर जिस तरीके से सदको खैरात करता है, दिन के अंदर सदको खैरात करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक वो इंसान भी महबूब है। सामीन किराम, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी और हमारी नीयत देखना चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमारी नीयत मकसूद होती है। मिसाल के तौर पर एक मस्जिद बन रही है, लोग 50-50 रुपया मस्जिद के अंदर दे रहे थे। एक आदमी आया, कहा मैंने 5,000 रुपए में देता हूं। अब इंसान जरा सोचो, बाकी दीगर लोग जो है वो लोग देखेंगे कि सामने वाला 5,000 रुपया दे रहा है, तो 50 रुपया देने में शर्मिंदगी महसूस करेंगे। वो लोग कहेंगे चलो ठीक है 50 नहीं 500 रुपया दे दे। अगर इस मकसद से वो इंसान ने 5,000 रुपया अगर दिया है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को वही चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन को मकसूद होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन को चीज वही चीज मकसूद होती है। सामीन किराम, इसलिए ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे दोस्तों, सबसे पहले कोशिश ये करो कि हम बढ़ चढ़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के अमल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावाति वल अर्ज़। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया कि तुम लोग बढ़ चढ़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अमल करो, तुम जन्नत के लिए अमल करो, उस जन्नत के लिए अमल करो जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के दरमियान है। सामीन किराम, सबसे पहले जरूरी यह है कि हम लोग क्या करें, हम नमाज पढ़ें, ज़कात दे, हम कुरान मजीद की तिलावत करें। पहले जमाने में यह होता था, कभी घर से गुजरा करो तो कुरान मजीद की तिलावत की बड़ी आवाज आती थी, वो घराना बड़ा अच्छा समझा जाता था। आज हमारा मामला उल्टा हो गया है। आज हमारे अंदर अमल नहीं है, हमारे अंदर अमल नहीं है। आज कुरान मजीद की तिलावत की क्या है, आवाज है, घरों से नहीं आती है। हमारे अंदर इखलास नहीं रह गया है। थोड़े बहुत जो अमल करते हैं वो भी दिखावे के लिए, वो भी रियाकारी के लिए, वो भी क्या है शोहरत तलाबी के लिए करते हैं। सामने किराम, मैं कहना ये चाहता हूं, हम सब बढ़ चढ़ करके नेक अमल करें,
ہم اللہ رب العالمین کی نماز پڑھیں, اللہ رب العالمین قرآن مجید تلاوت کریں, ہم اللہ رب العالمین کی صدقہ و خیرات کریں, ہم اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے نیک عمل انجام دیں, اور کیا ہے دکھاوا, شہرت طلبی, ریاکاری سے ہم بچتے رہے. ہمارے اسلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے دعا کیا کرتے تھے, اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے, اللہ رب العالمین سے کہتے تھے اے اللہ رب العالمین کیا ہے جو لوگ اے اللہ اللہم اجعلنی خیر مما یظنون, اے اللہ رب العالمین میرے بھائی لوگ, جو لوگ آدمی کبھی کبھی ہوتا ہے کیا ہے انسان صدقہ و خیرات کر دیا مخفی انداز میں, لیکن اس کی بات عوام میں پہنچ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان مخفی اور چپکے سے انداز میں وہ انسان صدقہ و خیرات کر لیا, لیکن اگر اس کی کیا ہے بھنک دوسروں کو پہنچ گئی تو سمجھ لیجیے اس کے لیے خوشخبری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خوشخبری ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے خوشخبری سے گردانا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ پناہ مانگا کرتے تھے, اللہ رب العالمین سے کہتے تھے اللہم اجعلنی خیر مما یظنون, اے اللہ رب العالمین تیرے یہ بندے جو ہیں جو لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں, اے اللہ رب العالمین مجھے اچھے لوگوں میں بنا دے. اے اللہ رب العالمین واغفر لی, اے اللہ رب العالمین تو بخش دے بما لا یعلمون, میں گنہگار ہوں اللہ رب العالمین, یہ لوگ میرے عملوں کو نہیں جانتے ہیں, اے اللہ رب العالمین تو مجھے بخش دے اللہ رب العالمین. یہ اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے. اور ولا تؤاخذنی بما یقولون, اے اللہ رب العالمین تو میرا مواخذہ نہ کر جیسے لوگ کہتے ہیں, اے اللہ رب العالمین اگر غلط کہتے ہیں تو اس کے اندر میری پکڑ نہ کر. اس لیے میں اس خطبہ جمعہ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, ہم عمل کے اندر کوتاہ بھی ہیں, ہمارے اندر عمل کی کوتاہی پائی جاتی ہے. ہم بڑھ چڑھ کر کے نیکی کے اندر کیا ہے ہم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں, اور جو بھی عمل کریں اللہ رب العالمین کے لیے کریں. ہم اخلاص ہمارے عملوں کے اندر ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمارے عملوں کے اندر اللہ رب العالمین اخلاص, اللہ رب العالمین اخلاص کی جڑوں کو ہمارے عملوں کے اندر اللہ رب العالمین پہ وسع دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک.